अरफात बैंक्वेट्स, 2 खुशादा खूबसूरत हॉल्स, 600 तक मेहमानों की बेहतरीन गुंजाइश, फुल्ली एयर कंडीशन, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड बाअदब स्टाफ, वसीतर पार्किंग एरिया। अरफात बैंक्वेट्स, खिलवत रोड नियर शाली बंडा, हैदराबाद। और चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से जो अहकामात गए थे उस पर अमल आवारी नहीं हुई, तो उस ताल्लुक से मैं ये कहना चाहता हूं कि 1 महीने में रमज़ान का आगाज होगा, तो अभी से अगर रमज़ान के इंतजामात की मीटिंग बुलाई जाती है और अहकामात दिए जाएं कि रमज़ान के महीने में कारोबार करने वालों को जल्दी कारोबार बंद करने पर मजबूर ना किया जाए, क्योंकि वो तरावी को जाते हैं, नमाज पढ़कर आते हैं। इसलिए अगर रमज़ान के इंतजामात की मीटिंग अगर बुलाई जाती है तो इससे काफ़ी सहूलत होगी। एंड द सेकेंड इशू विच आई हैज रेज्ड वाज अबाउट द फ्रूट मार्केट सर। Now the season for mangoes will be coming, sir. I know the matter is sub judice, but this can be sorted out if the government comes forward and give the Patti passbook to the fruit market which has been established at Hazrat Pahadi Sharif ke paas mein. And also I had spoken about the IT park. So that also hasn't been spoken about Honorable Chief Minister Saab sir, and I have also spoken about the 2-bedroom housing which was allotted to the beneficiaries. In spite of getting the allotment letter and the names being in the list, they have not yet been handed over with the keys. And I've also mentioned about the old area where GHMC quarters and PWD quarters were there, we had constructed. Those flats are also not handed over, sir. So I need a clarification on that. I have also spoken about food adulteration. Honorable Chief Minister Saab haven't spoken anything about that. An important issue I had raised about the traffic problem of Hyderabad city. So I had requested for a meeting of city legislatures to be called so that we could give our suggestions regarding this. And about the Waqf land, sir. So the CBCID inquiry was ordered, and I had requested to please speed up the CBCID inquiry and place the report of CBCID. So for about that also nothing has been told, sir. Sir, I have also spoken about this religious tourism, sir. Pilgrimage. There is a need for provision for including the famous Gurudwaras of the city, also the famous churches like the Medak Church and also the Parsi temples, and also the Shia community Tabarukas at Bibi Ka Alawa, Khilwat Mubarak, Ashur Khana, Alawa Sartok, and also the famous dargahs can be included. So Honorable Chief Minister hasn't spoken about that, sir. Sir, also I have requested for speedy completion of Charminar pedestrianization. This pedestrianization project was started in 1991 and still it is pending, sir. I have also spoken about the summer contingency plan, sir, because summers are coming and then Ramzan is there. There are many unserved area in the city, sir, where there is a scarcity of water. Pani nahi aata hai, so every time in summer and Ramzan time, the Waterworks Department gives some special tankers for supplying of waters to the identified localities and also few mosques. So I request that a meeting of this would be called, sir. I have also spoken about Yuva Vikasam guarantee, sir, Vidya Bharosa cards with financial assistance of 5 lakhs. Honorable Chief Minister Saab haven't spoken anything about that, sir. I have also spoken about this Praja Palana applications were received for ration cards. Sir, I would like to know how many applications were received to new ration cards now, apart from the applications pending before the present government, sir. Sir, lastly, sir, I have also spoken about this. I would like to know from Honorable Chief Minister, sir, I haven't spoken, but I'm speaking right now, sir, about this Kaleshwaram project, sir. Sir, the Telangana High Court has expressed its inability to spare a sitting judge for judicial inquiry. So now I would like to know which inquiry the government is going to order. Are they going to go for a CBI inquiry? Because we need to find out, sir. So many allegations we are reading, this happened, that happened. So I think it is the need that
an inquiry should be ordered, if not CBI, at least CBCID or retired judge. But there has to be an inquiry so that the truth comes out. So I need the clarifications about this, sir. और आखिर में मैंने एक अहम सवाल किया था साहब कि महंगाई बढ़ रही है, राइस की कीमत बढ़ रही है, ऑयल की कीमत बढ़ रही है, दाल की बढ़ रही है, और गरीब और मिडिल क्लास परेशान है। तो उस ताल्लुक से भी मैंने किया था, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब खामोश है। मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब इस ताल्लुक से जो मसाइल मैंने उठाए हैं इस ताल्लुक से जवाब देंगे। और रमज़ान से पहले फिर हमारे को शबे बारात भी आएगी साहब, तो उसके लिए भी मैं चाहूँगा कि खुसूसी इंतजामात करें, क्योंकि लोग कब्रिस्तान को जाते हैं और जो लोग मर गए हैं उनकी खबर पे फूल चढ़ाते हैं। तो मैं फिर से आपसे आपके ज़रिए हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि रमज़ान के इंतजामात के ताल्लुक से एक मीटिंग का ऐलान करें। అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారికి ఎంఐఎం పార్టీకి కొన్ని విషయాలలో పూర్తి వివరణ ఇవ్వదలుచుకున్నాం. జేఎన్ఎన్యూఆర్ఎం ఈడబ్ల్యూఎస్ బాంబే ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ హౌసింగ్ స్కీమ్ కింద ఈ ఇండ్లన్నీ కూడా కూలిపోయే శిథిలావస్థలో ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ జిహెచ్ఎంసీ దగ్గర డబ్బులు లేకపోవడం వల్ల హెచ్ఎండిఏ నుంచి 100 కోట్లు ఆల్రెడీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. జిహెచ్ఎంసీ కూడా 206 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో పునరుద్ధరణ కోసం వివరణాత్మక అంచనాలు రూపొందించింది. త్వరలో పనులు ప్రారంభిస్తాం. పాయింట్ నెంబర్ 1. ఓల్డ్ సిటీ కృష్ణా జలాల విషయంలో కూడా వారు ప్రస్తావించారు. రిపేర్స్ చేసినప్పుడు మధ్యలో కొంత అంతరాయం కలిగింది. పూర్తి స్థాయిలో కృష్ణా నది జలాలను ఓల్డ్ సిటీలో ఇవ్వడానికి కూడా మేము ముందుకు వచ్చినాము. అదేవిధంగా చాంద్రాయన్ గుట్ట ఏరియాకు సంబంధించిన సివరేజ్ నెట్వర్క్ విస్తరణ మరియు అభివృద్ధి సేవలు మరియు బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం 301 కోటి రూపాయలతో అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టింది. దీనికోసం జీవో నెంబర్ 544 తేదీ 5/8/2023 జారీ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్టు టెండర్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. ఈ ప్రక్రియను త్వరలోనే పూర్తి చేసి 2 సంవత్సరాలలో పనిని పూర్తి చేస్తాం. వేసవిలో నీటి ఎద్దడి గురించి కూడా వారు ప్రస్తావించారు. దానికి అవసరమైన నీటి సరఫరా డిమాండ్లను తీర్చడానికి కావలసిన నీటిని తరలించడానికి అత్యవసరంగా పంపింగ్ ఏర్పాట్లు చేసాం. అవసరమైన అన్ని రకాల చర్యలు ఏర్పాటు చేస్తాం. रमजान अभी रहे रमजान के लिए सब कुछ इंतजाम करने के लिए जीएचएमसी एंड स्टेट गवर्नमेंट बजट भी सैंक्शन किए 5 करोड़ रुपए. जल्दी से जल्दी वो टेंडर बुलवा के वो काम करवाने के लिए सरकार पूरा तैयारी कर ले रहे. और रमजान के समय पर जो भी पीने का पानी सब सारे जो भी है HMWSS भी वो काम में लगा हुआ है. रमजान के बारे में इलेक्शन कोड आया तो आप सचमुच बोले, हमें भी पता है, हम कोई रिव्यू नहीं कर सकते. जैसे ही असेंबली खत्म होते सब MLAs को बुला के एक सेपरेट मीटिंग बुलवा के आप लोग जो भी मुद्दा उठाएंगे वो पूरा रिजॉल्व करने के लिए हमारे ऑफिसरों को मैं आदेश दे दूंगा. और ఓల్డ్ సిటీకి సంబంధించిన పనులు పురోగతి జరుగుతూనే ఉన్నాయి. SRDP స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్స్ కానీ పదే మెట్రోకి సంబంధించి గతంలో 75 కిలోమీటర్లకు కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మెట్రో పనులకు టెండర్లు పిలిచి ఎల్ఎన్టీకి ఇస్తే 69.5 కిలోమీటర్లే పని చేసిండ్రు. 5.5 కిలోమీటర్లు గౌలిగూడ బస్ స్టాండ్ నుంచి ఫలక్నామా వరకు వేయాల్సిన మెట్రో రైల్ని ఎల్ఎన్టీ సంస్థ నిర్మించలేదు. దానికి సంబంధించిన वो जो पिछले सरकार ने मेट्रो के लिए 75 किलोमीटर टेंडर बुलवाए एलएनटी संस्था को दे दिए, मगर वो लोग 69.5 किलोमीटर मेट्रो का पूरे किए और 5.5 किलोमीटर गौलीगुड़ा बस स्टैंड से लेकर फलकनामा तक जो मेट्रो ओल्ड सिटी में बनाने का था वो नहीं बनाया. इसीलिए हमारा सरकार आते ही इसके बारे में मेट्रो के बारे में हम पूरी तरीका से हैदराबाद शहर के बारे में हम रिव्यू किया. इसीलिए आज हम लोग यकीन से जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूं, ग्रेटर हैदराबाद में मेट्रो का बहुत जरूरत है. गरीब लोग जो इसमें मेट्रो गरीब लोगों के लिए बहुत जरूरी है. इसीलिए गौलीगुड़ा से लेकर फलकनामे से लेकर चंद्रायन गुट्टे तक मेट्रो रेल डालने के लिए हम लोग आदेश दे चुके हैं. और दूसरी बात रहा नागोल से लेकर एलबी नगर से लेकर ओवैसी हॉस्पिटल से लेकर चंद्रायन गुट्टा से लेकर P7 रोड से लेकर सीधा इंटरनेशनल हवाई जहाज अड्डा पे हम मेट्रो रेल ले जा रहे. और एलबी नगर से
हैतनगर तक हम मेट्रो रेल लेके जा रहे हैं और कुकटपल्ली से आगे चंदानगर से लेकर BHEL और रामचंद्रापुरम तक भी हम मेट्रो आगे वहां पर भी हम आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हम हाईटेक सिटी से लेकर गच्चबौली वहां पर विप्रो जंक्शन से जो अमेरिका काउंसलेट सेंटर है वहां तक भी हम आगे ले जाने के लिए तेलंगाना सरकार ने पूरा अप्रूवल किए। ये पूरा रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को हम दे चुके हैं। केंद्र सरकार से हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं क्योंकि ये बजट केंद्र सरकार ने देना है, इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार से कुछ पैसे लेके ये मेट्रो रेल आगे ले जाने के लिए। हैदराबाद शहर का जो पिछले मेट्रो भी हम ही ने बनाया, ये भी मेट्रो आगे हम ही लोग बनाने का है। वही नहीं, एयरपोर्ट से कंदकूर में जो इससे पहले सरकार जो फार्मा सिटी बोले, हम आगे अच्छा डेवलपमेंट वहां लाने के लिए एयरपोर्ट से लेकर कंदकूर जो फार्मा सिटी के नाम पे जो जगह लैंड एक्वायर किए वहां तक भी हम मेट्रो ले जाने के लिए हमारा कोशिश है। हर तरीका से हैदराबाद शहर में आपको जानकारी है क्योंकि आप 7 बार MLA जीत चुके हैं। यहाँ के जनता, यहाँ के लोग आने वाले जाने वाले ये हैदराबाद मेट्रो सिटी को जितना जानते, ये हेरिटेज प्रिसिंक्ट्स कुली कुतुब शाही से लेकर चार मीनार तक कितना अच्छे सुंदर सुंदर बड़े बड़े महल से, ये सब सारे देखने के लिए दुनिया कोने कोने से यहाँ पर लोग आ रहे। इसीलिए हम लोग जो मूसी रिवर डेवलपमेंट, मूसी रिवर फ्रंट के नाम पे हम लोग आगे डेवलपमेंट करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग उठाए। उसी सिलसिले में हम लोग सरकार के तरफ से लंदन आए थे, आप भी हमारे साथ में शामिल हुए, जो एक्सपर्ट से हमारा मीटिंग हुआ था। इसीलिए गंडीपेट से लेकर उस्मान सागर, हिमायत सागर से लेकर नागौल से आगे 55.5 किलोमीटर्स मूसी एरिया, मूसी रिवर डेवलपमेंट, रिवर फ्रंट डेवलप करने के लिए हमारे सरकार पूरे कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का मदद जरूरी है, आपके मदद हम लेंगे। हैदराबाद शहर को हम इतना सुंदर शहर बनाएंगे, यहाँ दुनिया से आप बेंगलुरु से, दिल्ली से, मुंबई से और किसी शहर से हम लोग कॉम्पिटिट नहीं करना चाह रहे। पूरी दुनिया में हमारे हैदराबाद शहर को इतना सुंदर शहर बनाना चाह रहा है। हमारे वक्त में जो आउटर रिंग रोड हम ही ने बनाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम ही ने बनाए, मेट्रो रेल हम ही ने बनाए, कृष्णा से पीने का पानी हैदराबाद शहर का आप और पी जनार्दन रेड्डी इसी असेंबली में चिल्ला के हैदराबाद शहर का, हैदराबाद लोगों के लिए जो पीने का पानी तकलीफ आप आवाज उठाए तो कांग्रेस पार्टी ने कृष्णा से पानी लाए और गोदावरी से भी हैदराबाद शहर पीने का पानी हम ही लोग लाए। आगे भी हमारे जिम्मेदारी है। मैं यकीन से मेरे सरकार के तरफ से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं पूरे तेलंगाना जनता को, 4 करोड़ लोगों को, हैदराबाद शहर को अगले लेवल पे हम लोग लेके जाने वाले हैं। इसीलिए जो हैदराबाद में अप टू आउटर रिंग रोड के इनसाइड जो शहर है अर्बन तेलंगाना, आउटर रिंग रोड से लेकर जो नया रीजनल रिंग रोड बनाने के लिए जो तैयारी हो रहे वो सेमी अर्बन तेलंगाना, और रीजनल रिंग रोड से लेकर तेलंगाना बॉर्डर तक रूरल तेलंगाना 2050 मास्टर प्लान हम लोग बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अकबर साहब, हम लोग आगे तेलंगाना के लिए बड़ा नक्शा लेकर आने वाले हैं। ये हैदराबाद, ये तेलंगाना को दुनिया से में सबसे बड़ा सुंदर प्रदेश बनाने के लिए हमारा कोशिश जारी रहेंगे। आपका मदद हमेशा, जितने हम जो भी अच्छा किए आप तारीफ किए, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आगे भी आपके पार्टी से चुनाव हो गए, राजनीति चुनाव के समय पर आप कुछ भी बोलो, राजनीति हम सरकार बनाने के बाद सरकार चलाने के लिए, इस प्रदेश को आगे तरक्की करवाने के लिए हम लोग कोशिश जारी रहेंगे। आपके साथ जरूर लेता हूं। आप जो बात मुद्दे उठाए सब सारे मेरे का रिकॉर्ड, और कुछ भी जो भी अगर बचा हुआ है मैं अलग मीटिंग बुलाऊंगा, आपसे अलग मीटिंग ले लूंगा। भारतीय जनता पार्टी का MLA भी मैं अलग बुलाऊंगा और TRS का भी KCR साहब को यहीं के इधर से मैं उनके लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं। चंद्रशेखर राव जी भी एज ए लर्नर्ड सीनियर एक्सपीरियंस
मेंबर ऑफ दिस हाउस जो भी उन्होंने भी आगे तेलंगाना के लिए जो उनका सुझाव है हम लोग ले लेंगे, उनके लिए भी हम लोग वेलकम कर रहे हैं। और अकबर साहब हम लोग ये तय किए विथ स्पीकर परमिशन और बहुत सारे छोटे छोटे जिले में बड़े बड़े कलेक्टर ऑफिस बनाए। हमारे वेंकट रेड्डी साहब चिट्ठी भेज रहे, इतना बड़ा शहर कम से कम करोड़ के ज्यादा लोग हैं, कलेक्टर ऑफिस नहीं है हैदराबाद शहर के लिए, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए। हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस के जितने भी डिपार्टमेंट्स में एक एक कोने पे एक एक है, किसी को बुलाना है तो दूसरे दिन आएंगे। वो आज शुरू हो गए तो ट्रैफिक जाम में वो चलते चलते आए तक पूरा दिन खत्म हो जा रहा है। इसीलिए हमारा वेंकट रेड्डी साहब ये बोल रहे हैं हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस अच्छा मल्टीपर्पज न्यू कलेक्टर ऑफिस बनाने के लिए वो रिक्वेस्ट किया, उनके ऑफिसर रिक्वेस्ट किए। हम अकबर साहब हम हैदराबाद शहर के लिए अच्छा शानदार कलेक्टर ऑफिस बनाने के लिए भी इस मौके पे आप लोगों को मैं भरोसा दे रहा हूं। इसीलिए हम कोई छुपा के कुछ काम करने के लिए हम नहीं सोच रहे, हम सबके सामने यहीं पर चर्चा करेंगे जो तेलंगाना के लिए अच्छा है, जो हम सोच सकते। हमारे सोच से भी अगर आगे आपका सोच कुछ रहा तो हम बेशक से आपका मदद लेंगे, इसमें तो कुछ आगे पीछे होने का कुछ नहीं है। इसीलिए मैं अकबर साहब को मैं एक ही यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारे तरफ से हर चीज हम आपकी मदद लेके ये तेलंगाना तरक्की के लिए हम लोग करने वाले हैं।